All right. Yes. So I hope I'm audible and visible. And I just started this broadcast. So yeah, once I get a go ahead from some of you, then I think we can get going with the session. I'll just log in from my system as well. Let's just see. Yeah, can someone confirm if I am audible and visible? Yeah. All right. So I've got an all clear. So I'll go ahead and start with the session. All right. Yeah. So, okay, fine. Just give me a second. All right. So we'll be starting with the session. This is the second daily drill on reading comprehension. We have already done one as a part of the first daily drill that happened. So if you haven't seen that daily drill, please go and have a look at it as well. Because in that session, what I have done is I have had a small discussion on how exactly do you go about solving reading comprehension questions and how exactly do you go about answering questions, how exactly do you scan through the passage, how do you look at the keywords, the transition words, and so on. So I have covered a lot of ground there. So maybe you might of the session there. I'll put the link to that thing in the description box below. It will be a part of the same playlist as is this one. So once you see that, you will be able to manage it. Okay. And all right, perfect. Yeah. And in the context of today's session, again, I hope that you have solved the test. Even if you haven't, we can solve a lot. You can take the test later and just experience it for what it is, and you can take the other tests as well. So that is something you can do. I'll put the link to the link is already available in the description box to the portal which hosts all our tests. Now, what you're supposed to do is once you're done registering for the particular daily drill course, you will get a confirmation email. You will have to confirm. You will have to click that particular link to be able to take the tests. Otherwise, you will not be able to do it in some cases. Okay, so that is basically everything about the tests and all. So today we have three passages, and there is a bit of a mix. So one passage has six questions, and two other passages have three questions each. Now, this is the format that used to happen before COVID. After COVID, it has more or less standardized, and you get four questions per passage, more or less nowadays. So nowadays, you get four questions per passage, and four such passages. So 16 questions are from the reading comprehension part. ठीक है सो व्हाट वी विल डू टुडे इज एक बार हम लोग सब पैसेजेस देख लेंगे क्या होते हैं करके मतलब पैसेज एक बार पूरा पढ़ लेंगे आई ट्राई टू हाईलाइट द थिंग्स दैट आई वुड हैव हाईलाइटेड हैड आई सॉल्व्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इनफैक्ट दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द कैट स्लॉट्स जहां पे मैंने वो स्लॉट में कैट दिया था उस स्लॉट में कैट दिया था राइट एंड दैट्स व्हाई आई हैव अ लॉट ऑफ फेमिलियरिटी विद दीस पैसेजेस टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू and we will try to see how it goes and what all things should we have considered when we went ahead and solved the questions. And कहाँ पे भी कुछ भी अगर issue आता है, if you are not able to understand something, please let me know. I'll try to explain it to you then and there. And of course, at the end of it, अगर कुछ भी problem आता है, तो you can just put it as a comment to the video that I will be uploading, and then I can get back to you on that. ठीक है? चलो, all right. So let's get going with the first passage. So the first passage is a very interesting passage and something which all of you would have experienced. तो ऐसा नहीं है कि this is something जो पता ही नहीं है और कुछ नया concept है. It's not like that. So first, let's try to see what exactly is the concept of this passage. What is the passage trying to tell us? And then we can have a look at the questions and then we can go about solving it. Okay. So the first thing that I mentioned, I just give a small recap of what we had discussed earlier. What exactly was it that we are supposed to look at? So one, we are supposed to ignore all the random information that has been given to us. Random information matlab something that is present within brackets or something that is given as an example or something that is within commas which describes a particular phenomenon. So all those things we can ignore. That is the first part.
सेकेंड थिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ नेम, कुछ नाम अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा, तो रादर देन रीडिंग एंड री रीडिंग इट, बार बार दो तीन बार पढ़ने से बेटर है एक बार उसको पढ़ लो जल्दी से, यू विल गेट अ जिस्ट ऑफ इट फॉर श्योर। एंड एक बार वो समझ में आ जाएगा, देन यू कैन गो टू द क्वेश्चन एंड कम बैक टू द पैसेज, क्योंकि एनीवे वो होने वाला है। आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ यू व्हाट यू वुड बी डूइंग इज, एक बार पैसेज पढ़ लिया एंड फिर आप चले जाते हो क्वेश्चन पे देखने के लिए, एंड क्वेश्चन देख के वापस आप पैसेज पे आते हैं। तो अगर आपको पैसेज वापस पढ़ना ही है तो फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। And the third and most important thing, or third thing, that is you have to pay attention to the adjectives and adverbs. So we will look at it in some context in these passages as well. But बहुत important है आप adjectives और adverbs को ठीक से पढ़ लो, क्योंकि अगर आप adjectives और adverbs पे ध्यान दोगे तो आपको author का tone पता चल जाएगा। तो अगर बहुत सारे adjectives आ रहे हैं जो बहुत ही positive sense में है, then you know that the author has a lot of positivity towards this particular topic. अगर बहुत सारे नेगेटिव कॉनोटेशंस आ रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स द ऑथर इज स्लाइटली नेगेटिव और वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ये पता चल जाएगा। तो एडजेक्टिव से ही पता चल जाएगा, एडवर्ब से भी मतलब पेस पता चल जाता है जनरली कि कितना फास्ट चल रहा है, कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है तो फिर वो फेवरेबल थी कि नहीं थी वो पता चल जाता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर यूजफुल टू यू इफ यू गो थ्रू द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स प्रॉपर्ली, right? And finally, again, we will look at the transition words that are there. So, but, although, again, like, simultaneously, in spite of, instead, ये सारी चीजें है ना, वो या तो ऐड करेंगी या तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी कोई चीज को। तो अगर बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट एक दिया हुआ है, उसके आगे एक बट आता है ना, तो वी नो दैट डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट द आर्ग्यूमेंट दैट वाज मेड अर्लियर। ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगा, एंड दैट इज बेसिकली व्हाई दीस ट्रांजिशन वर्ड्स यू कैन से आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह में जाने में हमको हेल्प करेंगी। या तो सेम कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे या तो कंप्लीटली उसका डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे। ठीक है, so let's look at the passage. Let's read this passage. So what you can do is also you can also read along, and you can try to form an opinion of your own when we are doing this. And then I think gradually you will get better at attending these kind of questions. ठीक है, and I also know there is a match going on. So yeah, of course, if some of you are not here because you are doing that, then fair enough. It's okay. It's not a problem at all. ठीक है, थोड़ा बहुत you can enjoy. So now we'll start with the passage. So this year alone, more than 8,600 stores could lose, according to industry estimates. Many of them the brand name anchor outlets, right? So 8,600 could lose करके बोला हुआ है. Many of them among the brand name anchor outlets that real estate developers once stumbled over themselves to code. ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है. तो यहाँ पे the point is 8,600 stores could close. ये important है. ऑलरेडी देयर हैव बीन 5300 रिटेल क्लोजिंग्स दिस ईयर, तो 8600 और होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, बट 5300 ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट? हैज रिटेल क्लोजिंग्स दिस ईयर। सीयर्स होल्डिंग्स व्हिच ओन्स केमार्ट, तो ये व्हिच ओन्स केमार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे, बिकॉज सीयर्स होल्डिंग्स इज सफिशिएंट। सो सीयर्स होल्डिंग्स सेड इन मार्च दैट देयर इज सब्सटेंशियल डाउट। सो कैसा डाउट है? सब्सटेंशियल डाउट है, राइट? तो बहुत सारा डाउट है। क्या डाउट है? दैट इट कैन स्टे इन बिजनेस। सो स्टे इन बिजनेस होगा कि नहीं, वही उनको डाउट है। एंड विल क्रॉस 300 स्टोर्स दिस ईयर। तो सीयर्स होल्डिंग्स 300 स्टोर बंद करने वाला है। So far this year, 9 national retail chains have filed for bankruptcy, right? तो bankruptcy is again a very strong word. Bankruptcy meaning कुछ business ही नहीं हो रहा, zero revenue आ रहा है, zero sales हो रहा है, करके वो पूरा का पूरा बंद हो गया, and they declared bankruptcy कि भाई मैं तो पैसा दे ही नहीं सकता। ठीक है, this was basically what I had, and now I have zero liability, कुछ भी मतलब zero assets to finance my liabilities, तो मैं liability finance कर ही नहीं सकता, let's। So that is more or less what it means when it says have declared, have filed for bankruptcy। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट वी आर सेइंग है, सिचुएशन बहुत खराब है। द पैराग्राफ का पूरा व्हाट इज द समरी ऑफ दिस, दैट द सिचुएशन इज बैड फॉर रिटेल स्टोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेल चेन्स जो है, रिटेल चेन्स दे आर इन अ बैड सिचुएशन एंड दे आर क्लोजिंग। ठीक है, तो यही है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर और कुछ भी नहीं है। सो दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिनेरियो कि कितना ज्यादा स्टोर बंद हो रहे हैं, देख लीजिए। Now what happens? Local jobs are a major casualty. ठीक है, मेजर कैजुअलिटी। अगेन कैजुअलिटी इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? बैंक्रप्सी आ गया, कैजुअलिटी आ गया, और व्हाट एनालिस्ट्स आर कॉलिंग विद ओनली अ हिंट ऑफ हाइपरबोल। तो हिंट ऑफ हाइपरबोल मतलब बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, व्हाट दे मीन द रिटेल अपोकैलिप्स। अगेन अपोकैलिप्स एक नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ये पैसेज जा रहा है। Since 2002, department stores have lost 4,48,000 jobs. तो बहुत सारे jobs डिक्लाइन चले गए हैं, 25% डिक्लाइन। अगेन jobs जा रहे हैं, that is what it means, right? So jobs is what I will underline here. While the number of store closures this year is on pace to surpass the worst depths of the Great Recession.
तो ग्रेट रिसेशन जब हुआ था, जो भी 1929 1930s में जो हुआ था, उससे भी खराब हालत है, इज व्हाट दे ट्राइंग टू से, मतलब बहुत बुरी हालत है। The growth of online retailers, meanwhile, has failed to offset those losses. तो यहाँ पे meanwhile, तो meanwhile is a nice transition word. Meanwhile मतलब उसके साथ में ये भी चल रहा है, बट ये उसके शायद अगेंस्ट है, मतलब ये अगर डाउनफॉल में है ना, तो ये यहाँ पे ग्रो हो रहा है. So growth of online retailers has failed to offset these losses, with the e-commerce sector adding just 178,000 jobs. तो जो 4.5 lakhs जॉब गए ना, उसके अगेंस्ट सिर्फ 1,80,000 जॉब्स ही आए हैं. तो बहुत सारे लोगों के पास जॉब ही नहीं है अभी. दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम. Some of these jobs can be found in the massive distribution centers Amazon has opened across the country, often not too far from the malls the company helped shutter. The company helped shutter. The company मतलब कौन सी कंपनी? Amazon. क्यों किसको रेफर कर रहे हैं, राइट? तो Amazon ने जिन मॉल्स को बंद करने में, राइट, जिनका शटर बंद करने में एक हैंडफुल लगाया था, मतलब हेल्प किया था जिनको बंद होने में, या जिसके पीछे जो एक रीजन है बिहाइंड द क्लोजर ऑफ दीज मॉल्स, उनके बाजू में ही अमेज़न ने मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ओपन कर दिए, ठीक है? और वो वहाँ पे लोग जॉब्स करते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ का पूरा व्हाट एग्जैक्टली इज द समरी ऑफ द सेकंड पैराग्राफ? जॉब्स. तो सेकंड पैराग्राफ पूरा का पूरा जॉब्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ बोलता है रिटेल स्टोर्स तो बंद हो गए, सिचुएशन बहुत ही खराब है. सेकंड पैराग्राफ बोलता है दैट जॉब्स इज बेसिकली द इशू, ऑल द जॉब्स आर ऑन अ डिक्लाइन, एंड द अदर स्टोरी, ई कॉमर्स जो है ना, वो एस्टेब्लिश हो रहा है, but that e-commerce is not enough to replace all these people who have been rendered jobless. तो जिनका भी जॉब चला गया है, उनको रिप्लेस करने के लिए ई कॉमर्स सक्षम नहीं है. इट्स नॉट गुड इनफ टू गेट ऑल दोज पीपल एम्प्लॉयड. ठीक है, अभी तक तो दो पैराग्राफ समझ में आ गए, बहुत ही बेसिक सा सेट पैसेज. Now we'll go to the next paragraph. But those are workplaces, not gathering places. But those मतलब कौन से? जो ई कॉमर्स के जो बोले थे ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. So the distribution centers are workplaces, not gathering places. Right? So not again. So workplaces होते हैं, but gathering places नहीं होते. Is what is. The mall is both. Both क्या? वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड गैदरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. So it's very important here. And in the 61 years since the first enclosed one opened in suburban Minneapolis, doesn't matter, the shopping mall has been where a huge swath of middle class America went for far more than shopping. Now this again is a very important phrase. Far more than shopping. मतलब shopping तो कर ही रहे थे, but more than that is what they went to the mall. इट वॉज द होम ऑफ फर्स्ट जॉब्स एंड ब्लाइंड डेट्स. तो फर्स्ट जॉब बहुत लोगों का वहां पे आया था, ब्लाइंड डेट्स बहुत लोगों ने वहां पे मतलब दे वुड हैव गॉन फॉर ब्लाइंड डेट्स देयर. द प्लेस फॉर फैमिली फोटोज, ईयर पियर्सिंग्स, गॉड्स, ग्रैंड मदर्स कुड समहाउ वॉक थ्रू द सेम डोर्स एंड फाइंड समथिंग दे ऑल लाइक. अब इतना सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब एग्जांपल्स है. क्या एग्जांपल्स है? कि बहुत सारे लोग आते थे और शॉपिंग के अलावा भी लोग काम करने के लिए आते थे. तो जॉब करने के लिए आते थे, ब्लाइंड डेट्स पे आते थे, पियर्सिंग्स करने आते होंगे, फैमिली फोटोज लेने आते होंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग हियर. ठीक है, सो फार मोर देन शॉपिंग इज व्हाट इज जस्टिफाइड हियर. नाउ वी नीड नॉट रीड ऑल दिस. ये सब मतलब पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है. इवन इफ यू जस्ट रन थ्रू दिस, इट इज फाइन. अब इसके अंदर मतलब वट एवर, यू नीड नॉट नो हु व्हाट इज अ गॉथ एंड हु इज अ ग्रैंड मदर एंड वो फैमिली फोटो किसका निकाला, वो सबका कोई जरूरत नहीं है आप. सो लेट गो फॉर दिस. श्योर द फूड वाज लाउसी फॉर यू. तो फूड वाज लाउसी, लाउसी अगेन इज अ थोड़ा नेगेटिव वर्ड, बट फूड के कॉन्टेक्स्ट में ही है. एंड श्योर का मतलब क्या हो गया? कि हाँ, मतलब ऑफ कोर्स फूड लाउसी था. एंड द ओशंस ऑफ पार्किंग लॉट्स एनकरेज्ड कार हेवी डेवलपमेंट, समथिंग नाउ स्कॉर्ड बाय कंटेम्पररी प्लानर्स. मतलब कार हेवी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए था. तो ये उसके नेगेटिव्स हैं. सो यहाँ पे वट एवर हैज बीन रिटन ना, दोस आर दी स्लाइट नेगेटिव्स ऑफ मॉल्स. ठीक है, बट अगेन ट्रांजिशन वर्ड, मतलब स्लाइट नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव क्या है? हैज बीन द पब्लिक स्क्वायर ऑफ अमेरिका फॉर द लास्ट 60 years. तो पब्लिक स्क्वायर था. तो अब ये वाले पैराग्राफ में क्या बोला गया है? कि मॉल्स जो थे वो गैदरिंग स्पेसेस तो थे ही, एंड वर्क, प्लस बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस यहां से जुड़े हुए. राइट, सो अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी entered these malls, right? So diverse set of people entered these malls, and उनका बहुत सारा interaction होता था, and all those things have happened. हाँ, कुछ negatives थे. फूड ठीक नहीं था, कार मतलब कार हेवी डेवलपमेंट को encourage कर रहे थे, that is fine. But then again, it was the public square था. This is an important word. तो has been America's public square को एक नाम दे दिया है. So what happens when it disappears? It मतलब क्या? Public square जब disappear होता है तो क्या होता है? Think of your mall, or think of the one you went to as a kid. थिंक ऑफ द परफ्यूम क्लाउड्स इन द डिपार्टमेंट स्टोर्स. अभी ये एनकरेज किया जा रहा है कि विजुअलाइज करो कि मॉल्स का आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस
The fountains splashing below the skylights, the cinnamon wafting from the food court. As far back as ancient Greece, societies have congregated around a central market. तो कॉन्ग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल मार्केट प्लेस के आसपास मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। एंड यहाँ पे अगेन दे आर ट्राइंग टू सेल, तो यहाँ पे जो बोला है ना कि मॉल के बारे में क्या पॉजिटिव्स थे यहाँ पे, एग्जैक्टली exactly वही चीज बोले हुए हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू इमेजिन योर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, ठीक है, यू हैव टू इमेजिन योर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस व्हेन यू गो टू अ पर्टिकुलर मॉल। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, अभी तक यहाँ पे पहुंच गए। तो पहले क्या देखा था हम लोगों ने, रिटेल चेन्स खराब सिचुएशन में है। सेकंड थिंग, जॉब्स चले गए हैं, ई कॉमर्स इज नॉट गुड इनफ टू रिप्लेनिश दोस जॉब्स। थर्ड पैराग्राफ में हमने देखा कि मॉल्स तो पुराने जो थे वो बहुत अच्छे गैदरिंग प्लेसेस भी हुआ करते थे। एंड फोर्थ पैराग्राफ में मोर और लेस वही चल रहा है कि हाँ पॉजिटिव तो काफी एनवायरमेंट था व्हेन इट केम टू दीस मॉल्स। अभी यहाँ पे मीडिवल यूरोप में चले गए, दे वर आउटसाइड कैथेड्रल्स for half of the 20th century and almost 20 years into the new one. Much of America has found their agora on the terrazzo between Orange Julius and Sbarro, Walden Brooks and the Gap, Sunglass Hut and Hot Topic। अब ये सारे के सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बोला है कि कॉन्ग्रेगेशन होता था, कॉन्ग्रेगेशंस यूज्ड टू हैपन अराउंड मार्केट प्लेसेस, ठीक है। तो ये होता था, ये मतलब बहुत ऑब्वियस चीज है जो फिर से बताई गई है। द मॉल वाज एन इकोसिस्टम। अब अगेन इकोसिस्टम बोला गया है इसको, इकोसिस्टम इज अगेन अ वर्ड दैट इज नॉट यूज्ड जनरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉल्स, बट इकोसिस्टम बोला गया है। इकोसिस्टम unto itself a combination of community and commercialism peddling everything you needed। अब वहां पे बोला है कि इकोसिस्टम है, कम्युनिटी भी है उसके अंदर और कमर्शियलिज्म भी है, मतलब अगेन मार्केट प्लेस भी है। एंड सो बेसिकली यहाँ पे बोला था ना वर्क प्लेस एंड गैदरिंग प्लेस जो बोला था यहाँ पे, एग्जैक्टली exactly वही चीज फिर से बताई हुई है, तो इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। A growing number of Americans, however, don't see the need to go to any Macy's at all। तो Macy's का कोई चेन में जिनको जाने का कोई मन नहीं है। Our digital lives are frictionless। Again, adjective frictionless है। Ruthlessly efficient। Again, adverb and efficient है। Adjective and efficient है। With retail and romance available at a click। Malls are designed for leisure, abundance, ambling। You parked and planned to spend some time। तो टाइम यहाँ पे स्पेंड करना बहुत जरूरी था। Today, much of that time has been given over to a busier lives and second jobs and apps that let you swipe right instead of haunt the food। Malls, says Harvard business professor, whoever, were built for patterns of social interaction that increasingly don't exist। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। So what exactly are we trying to say in this particular paragraph? यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अभी जो है वो काफी एफिशिएंसी बढ़ गई है, ठीक है, एफिशिएंट वेज टू शॉप एंड रिक्रिएट, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया है वन। एंड जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना, जो टाइम बचता है एक्स्ट्रा, दैट इज यूज्ड फॉर सेकेंड जॉब्स एंड फॉर बिजी लाइव्स, ये सब चीजों के लिए यहाँ पे टाइम बच गया। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर। दो चीजें हो रही है यहाँ पे। वन, अपने लाइव्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गए, एंड मॉल जो था ना वो थोड़ा एम्बलिंग, यहाँ पे एक वर्ड आएगा एम्बलिंग, राइट। सो एम्बलिंग इज जहाँ पे आप आराम से चल रहे हो, एम्बल कर रहे हो, राइट। सो दैट काइंड ऑफ a lifestyle was more or less promoted by malls, ये बताया गया हम लोग को। बट अभी लोगों के पास टाइम ही नहीं है। वो जो टाइम वो लोग टाइम पास करते थे बेसिकली मॉल में जाके, दैट टाइम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पीपल वांटिंग टू डू सेकंड जॉब्स और वर्किंग हार्डर, या तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। एंड कुछ एप्स वगैरह है जहाँ पे मतलब यू कैन स्वाइप राइट एंड ऑल द डेटिंग एप्स दैट यू हैव, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, इंस्टेड ऑफ गो एंड हॉन्ट द फूड। तो दैट इज बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड, दैट इज बेसिकली द चेंज दैट हैज। And some Harvard business professor, Leonard Schlesinger, says the malls were built for patterns of social interaction that don't exist। तो अभी जो सोशल इंटरेक्शन के पैटर्न्स पहले हुआ करते थे, दोस पैटर्न्स डोंट एग्जिस्ट एनीमोर। इसके लिए मॉल्स रिडंडेंट हो गए, ठीक है। नाउ दैट इज बेसिकली द पैसेज। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट द पैसेज इज। देयर आर व्हाट सिक्स पैराग्राफ, फाइव और सिक्स पैराग्राफ्स इन द पैसेज। फर्स्ट पैराग्राफ में बोला गया रिटेल चेन्स बैड सिचुएशन एंड आर क्लोजिंग। सेकंड पैराग्राफ में बोला गया जॉब्स आर बीइंग लॉस्ट एंड दोस जॉब्स आर नॉट रिप्लेनिश्ड बाय द ई-कॉमर्स स्टोर्स दैट हैव रिप्लेस्ड दीस मॉल्स। सेकंड, थर्ड बोला गया है कि मॉल्स वर नॉट जस्ट वर्क प्लेसेस बट ऑल्सो गैदरिंग प्लेसेस, ये बताया गया है। और वहां पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं, बहुत डाइवर्स सेट ऑफ इंडिविजुअल्स आते थे, ये बताया हुआ है। कुछ नेगेटिव्स थे बट द पॉजिटिव्स आउटवेड द नेगेटिव्स, ये बताया हुआ है। Then you have been asked to imagine the experiences that you might have had as a child going to a mall. Then you have been told some history of marketplaces. Then you have been told again that ecosystem होता है, community and commercialism दोनों एक साथ होते हैं। Then you have been told कि ये क्यों हुआ करके, क्योंकि मॉल्स जो है ना वो आज के सोशल इंटरेक्शन के पैटर्न में फिट ही नहीं बैठता।
आज का सोशल इंटरेक्शन पैटर्न इज फास्ट, whereas malls are more or less for people who will take their time, leisurely go walk and all those things. तो उनके लिए malls ज्यादा important. ठीक है. Now let's look at the questions. The central idea of this passage is that, ठीक है, तो पहले let's try to come up with an answer on our own and then we will look at the options and eliminate the options. क्योंकि अगर मैं ऑप्शन देख लूं तो मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, राइट? सो सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज क्या होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर केस? यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? मोस्ट ऑफ द पैसेज टॉक्स अबाउट मॉल्स, कि हिस्ट्री में मॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, बीच में मॉल्स काफी ज्यादा वोग में आ गए थे, स्पेशली इन अमेरिका। बट देन अगेन व्हाट हैपेंड इज लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो मॉल्स का पूरा डेफिनेशन ही चेंज हो गया। नाउ मॉल्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ई कॉमर्स कंपनीज एंड द रिटेल आउटलेट्स एंड एवरीथिंग इज शटिंग। तो सेंट्रल आइडिया ये है कि मॉल्स जो एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे इकोसिस्टम में, वो या मॉल्स खुद एक इकोसिस्टम हुआ करते थे, नाउ दोस आर नो लॉन्गर रेलेवेंट एंड दे आर शटिंग नाउ। दैट इज बेसिकली सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है? द क्लोजर ऑफ मॉल्स हैज अफेक्टेड द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिका। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिका बोला गया है, बट यहाँ पे सिर्फ मिडिल क्लास की बात नहीं हो रही है। एंड यहाँ पे दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिका, दे आर सेइंग दैट मॉल्स क्लोज होने की वजह से a lot of people have lost their jobs, not just middle class, across strata people would have lost their jobs, ये बोल रहे हैं। and that has affected social life, has affected, yes, this is fine। सेकेंड ऑप्शन बोला तो यहाँ पे ये वाला जो है ना मिडिल क्लास, दैट इज बेसिकली दी प्रॉब्लम। सो मिडिल क्लास अमेरिका को सिंगल आउट करके नहीं बोला गया कि सिर्फ मिडिल क्लास को इशू आएगा, everybody would have had an issue with the closure of malls। ठीक है, the advantages of malls outweigh their disadvantages, ये बोला गया है, yes I agree। एक जगह पे हमने लिखा भी था कि कुछ नेगेटिव्स हैं, बट द मॉल्स ओवरऑल गिव अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, यस। बट यहाँ पे कहीं पे भी मॉल्स के क्लोज होने की बात ही नहीं कर रहे हैं, बट मॉल क्लोजर इज समथिंग दैट द पैसेज डील्स विद, तो यहाँ पे दैट हैज नॉट बीन मेंशन, तो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। Option 3 or C, malls used to perform a social function that has been lost. This is very close to what we are trying to say, right? Malls एक social function भी करते थे, commercial function करते थे. The same commercial function has been replaced by e-commerce companies. But जो social function करते थे, जिसमें people used to come and gather around, that has not been taken over by the e-commerce companies. And jobs and everything has been lost is also a thing that is there. तो यहाँ पे social function वाला part is good. The entire statement does not have any holes in it. ये and last option, malls are closing down because people have found alternate ways to shop. Now this is a very superficial way of saying, ये सिर्फ एक last line को उठा के बता दिया है that because people's thought processes and needs are changing, वैसे ही हमारे market places भी change हो रहे हैं। But that is not the entire passage, that is just the last line that has been said। यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ है कि पुराने वाले में क्या होता था। And alternate ways to shop is fine, but gathering के बारे में यहाँ पे बात नहीं हुई। ठीक है, so A and C are more or less close। तो यहाँ पे क्लोजर ऑफ मॉल्स has affected the economic and social life of middle class America specifically, which we will not be able to say। And यहाँ पे we are saying that malls used to perform a social function that has been lost, so this is much better। तो सोशल फंक्शन के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं, बट थोड़ी बात कर रहे हैं वन। एंड सेकंड थिंग इज मिडिल क्लास अमेरिका के बारे में एक्सक्लूसिवली बात नहीं हो रही। So that's why the correct answer here will be option C। ठीक है, at any point in time if you are not able to understand something, please let me know, I'll try to elaborate it again and then we will see if you are convinced or not। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं ऑनेस्टली जहां पे मतलब थोड़ा इफी है, मतलब during the test I might have marked something else, but now because we have the luxury of the key, it's easier for us to sit and justify it here। but of course कुछ जगह पे 19-20 हो सकता है, I will tell you where it was। यहाँ पे definitely it was not an issue, ये बहुत ही clear cut question था which you should have been able to manage। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। Why does the author say in paragraph 2, the massive distribution centers Amazon has opened across the country, often not too far from the malls the company helped shutter? राइट, सो कंपनी, कौन सी कंपनी जिसने शटर कर दिया ये मॉल्स को? Amazon ने ही शटर किया है, और उसी मॉल के बाजू में उन लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खड़े कर दिए हैं। राइट, सो दिस इज बेसिकली समथिंग विच इज वी कॉल आयरॉनिक। ठीक है, आयरॉनिक। तो यहाँ पे तो हाईलाइट आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव। तो दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड इट डायरेक्टली, क्योंकि वो आयरॉनिक है कि जिनको आपने बंद किया उन्हीं के बाजू में आपने शॉप खोल दी। ठीक है, सो दैट इज द आयरनी टू इंडिकेट दैट मॉल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आर लोकेटेड इन द सेम एरिया। अब ये तो सिर्फ ज्योग्राफी वाला पार्ट आ गया ना, इसमें कुछ इंसाइट नहीं मिल रहा मुझे। इट इज जस्ट सेइंग दैट हाँ बोथ ऑफ देम आर इन द सेम एरिया व्हिच इज लिटरल, नॉट टू फार फ्रॉम मॉल्स करके वो लिटरल है। बट उसमें ये हेल्प शटर वाला पार्ट नहीं आता। हेल्प शटर मतलब अमेजोन ने खुद ही हेल्प किया है उस मॉल को बंद करने में, और उसके बाजू में ही फिर अपना दुकान निकाल लिया। ठीक है, नाउ दैट इज बेसिकली द इशू। तो आर लोकेटेड इन द सेम एरिया इज टू लिटरल,
वी आर नॉट हियर टू फाइंड लिटरल मीनिंग्स। हमको क्या इम्प्लाई किया वो इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। इम्प्लाई क्या है, आयरनी है सिचुएशन। टू शो दैट Amazon is helping certain brands go online, ये तो कहीं पे बोला नहीं है। This is definitely not something that has been mentioned. Amazon is again a marketplace, that is about it, but it is helping certain brands go online, that is not what the statement means. To indicate that the shopping habits of the American middle class have changed, yes, ये बोल सकते हैं, but then again ये बाद में आता है। जो फर्स्ट पैराग्राफ में, जहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में जहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे दे हैड नॉट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द शॉपिंग हैबिट्स ऑफ अमेरिकंस दैट हैव चेंज्ड। तो जहां पे ऑथर ने ये दिया है, वहां पे द ऑथर वांट्स टू कन्वे व्हाट, दैट अ लॉट ऑफ रिटेल चेन्स हैव शट शॉप एंड उनकी जगह पे Amazon हैज कम, राइट। अ लॉट ऑफ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट एंड दोस जॉब्स हैव गॉन टू Amazon, राइट। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। एंड इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग क्या हो रहा है, वो लोग जहां पे मॉल बंद किए थे वहीं पे आके Amazon ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ओपन कर। So that is basically the irony of the situation. That is why option A will be the correct option in this particular case. तो यहाँ पे मतलब even after reading it, you should be able to get it. तो यहाँ पे ना फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं वो एक समझ लेना। आई स्पोक अबाउट सिमिलीज एंड मेटाफोर्स इन दी लास्ट डेली ड्रिल ऑफ आरसी दैट वी डिड, बट आगे जाके भी पर्सोनिफिकेशन, सिनेक्डोज और फिर हाइपरबोल जो हमने यहाँ पे देखा, आयरनी, ये सारी चीजों को समझ लेना कि व्हाट एग्जैक्टली डू दिस टर्म्स मीन। तो ये करने से योर पिकिंग ऑफ द टोन विल बिकम मच इजियर। फाइन, सो ऑल दीज थिंग्स आर there. Let's look at the third question now. And if there is anything, again, I'll reiterate. कुछ है तो let me know. I'll just try to explain to it again. Why exactly should one be the answer and not the other? Fine. In the first paragraph, the phrase real estate developers once stumbled over themselves to quote. ठीक है? तो suggests that day real estate developers ने क्या किया था? तो let's look at the first paragraph. This one. All right. So this year alone, more than 8,600 stores are closing, according to industry estimates. Many of them brand name anchor outlets that real estate developers once stumbled over themselves to quote. ठीक है। अब ये टू कोट का मतलब क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू कोट मतलब जो कोर्टशिप होती है, राइट। वेन एवर यू आर, आई डोंट नो, going around with someone and you are genuinely interested in someone, romantically बोल सकते हैं, right? So whenever you are interested in someone, when you are pursuing someone, that is basically something that is called to court. तो पहले क्या होता था, बहुत सारे ब्रांड्स बंद हो रहे हैं एंड मेनी ऑफ देम आर द ब्रांड नेम एंकर आउटलेट्स दैट रियल एस्टेट डेवलपर्स वंस स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्व्स। स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्व्स मतलब एक बोलता था मुझे चाहिए, उसके ऊपर से कूद के दूसरा बोलता था मुझे चाहिए करके, राइट। सो एवरीबडी वांटेड टू डेट और कोर्ट दोस ब्रांड नेम एंकर आउटलेट्स, दैट इज व्हाट इट मींस इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है। तो पहले तो मतलब बहुत वो लोग फाइट मारे थे वो चाहिए करके, बट अभी बहुत सारे वो स्टोर्स क्लोज हो गए हैं। That is basically what it tries to see. So let's look at the option that suggests this. They took brand name anchor outlets to court. नहीं, तो ये तो मतलब took brand name outlets to court मतलब उनको कटघरे पे खड़ा कर दिया, राइट। उनको लीगल इशू में फंसा दिया या कुछ करके। बट दिस इज डेफिनेटली नॉट लीगल। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरली टेकिंग देम टू कोर्ट, वी आर सेइंग दैट दे कोर्टेड दोस ब्रांड्स। ठीक है। तो ये था, तो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली नॉट राइट। सेकेंड, नो लॉन्गर परस्यू ब्रांड नेम एंकर आउटलेट्स, ये दिया हुआ है। सो नो लॉन्गर परस्यू ब्रांड नेम एंकर आउटलेट्स विच इज फाइन। तो पहले तो एक जमाने में वंस दे स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्व्स टू कोर्ट, व्हिच बेसिकली मींस दैट बहुत फाइट मार के वो चाहते थे कि ये ब्रांड नेम आउटलेट्स उनके पास आ जाएगा, बट अभी वो परस्यू नहीं करते। ठीक है। सो दिस इज फाइन, नो लॉन्गर परस्यू इज फाइन। पहले परस्यू करते थे बट दे नो लॉन्गर परस्यू। तो इस स्टेटमेंट के दो मतलब है या दो चीजें हैं जिसके अंदर एम्बेडेड है। वन, नो लॉन्गर परस्यू मतलब पहले परस्यू करते थे बट अभी परस्यू नहीं करते, राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इट। थर्ड वन, कोलैबोरेटेड विद वन अनदर टू गेट ब्रांड नेम एंकर आउटलेट्स। कोलैबोरेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। वी आर सेइंग दैट स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्व्स मतलब क्या, एक बोल रहा है मुझे चाहिए करके, बट दूसरा उसके ऊपर से कूद के, लिटरली कूद के आके बोल रहा है कि मुझे चाहिए करके। दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ स्टम्बल्ड ओवर, राइट। टू स्टम्बल ओवर समवन, मुझे ये चाहिए करके। तो कोलैबोरेशन तो बिल्कुल नहीं आ रहा। Last option, we're eager to get brand name anchor outlets to set up shop in their mall. We're eager to get brand name anchor outlets to set up shop in their mall. ठीक है। अब रियल एस्टेट डेवलपर्स मॉल के अंदर उनको आउटलेट दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे ये पता नहीं मुझे एक बार। ठीक है। एंड अभी मतलब मुझे ये नहीं पता कि वंस स्टम्बल्ड ओवर बोला था, राइट। तो वेर ईगर टू गेट ब्रांड नेम एंकर आउटलेट्स टू सेट अप शॉप एट देयर मॉल, अभी क्या हो रहा है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो दिस इज अ स्लाइटली, आई वुड से, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। Honestly, B or D में से, even if you had marked any of these, I would have been okay with it.
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे बीआरसी सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली, जहां पे यू माइट नॉट अग्री 100% विद द आंसर दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, ये बहुत बार होगा एंड दिस कुड बी वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिनको दोनों तरफ जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी मोर और लेस मीन समथिंग सिमिलर। आई एम नॉट सेइंग दे मीन द सेम थिंग, बट दे मीन समथिंग सिमिलर। ऑप्शन बी बोलता है अभी परस्यू नहीं करते बट पहले करते थे, एंड ये कोड का लिटरल मीनिंग परस्यू है, राइट? सो इफ यू नो दैट मच देन यू विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स बी। बट यहाँ पे बोल रहे वेर ईगर टू गेट ब्रांड नेम आउटलेट्स टू सेटअप शॉप इन देयर मॉल। तो वेर ईगर टू गेट नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट। वो परस्यू कर रहे थे, वो स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्व्स टू कोट हो रहा था, वो आ रहा है इसके अंदर। तो अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर हियर इज बी। D is not the right answer in this particular context. But even if you have marked D, I am okay with the answer. I would not say कि अरे बहुत गड़बड़ हो गई and verbal crack नहीं होगा, ऐसा सब चीज नहीं होने वाला। Even if you have marked D, I am okay with it. A और C mark किया तो फिर गड़बड़ है for sure. But B और D में से whichever you have marked, I am okay with it. The correct answer, the official answer is B in this particular context. The reasoning being that pursue and quote mean mostly the same thing, मतलब they mean exactly the same thing in a way. And no longer pursue implies that they earlier used to pursue, and यहाँ पे were eager to get brand name का अभी का situation कुछ पता नहीं चलता। So that is a very thin demarcation between the two options। ठीक है? So any doubts in this one? Anybody marked D for this one? So I'll just wait for a bit here because it is a slightly not difficult, I would say, but हाँ मतलब थोड़ा controversial question। अगर की नहीं दिया होता तो then either of them could have been the right answer is what I feel. Of course, nuances होते हैं. I'm not saying nuances नहीं होते, but that is more or less what it says. All right, ठीक है, चलो. So let's move on to the next question. We'll move on to the question number 4 now. The author calls the mall an ecosystem unto itself because. So why does the author call the mall an ecosystem? तो again देख लेते हैं ecosystem कहाँ पे लिखा हुआ है. We had marked it. The mall was an ecosystem unto itself, a combination of community and commercialism. मतलब लोग मिलते भी थे एक दूसरे से एंड वहां पे मार्केट प्लेस भी था, सेल भी होता था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वेंट देयर। ओके, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड हियर। ठीक है, पीपल कुड शॉप एज वेल एज ईट इन वन प्लेस। अभी सिर्फ ईट की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे। इट वॉज अ कमर्शियल एज वेल एज अ गैदरिंग प्लेस। ब्रिलियंट। यहाँ पे बोला गया है कि वहां पे ये भी होता था, वहां पे क्या बोलते हैं, इट वॉज अ कम्युनिटी एंड कमर्शियल प्लेस। ठीक है, तो वहां पे कम्युनिटी भी था एंड कमर्शियल भी था, तो गैदरिंग भी होता था एंड कमर्शियल स्पेस भी होता था। So this is a very nice option that we have. It sold things that were needed as well as those that were not. ये तो कहीं पे भी नहीं बोला हुआ है। So this is definitely not right. People of all ages and from all walks of life went there, yes. But उसके वजह से उसको इकोसिस्टम नहीं बोला है। इकोसिस्टम वहां पे आता है जहां पे they have explicitly mentioned कि कमर्शियलिज्म भी है एंड there is a gathering place as well। ठीक है, कम्युनिटी वाला पार्ट भी। So both of them are there. That's why it is called an ecosystem unto itself. यहाँ पे सिर्फ shop और eat बोला है. It's not just eating, it's gathering. So gathering is a much better word. That's why B is out. And A is just the gathering वाला part. उसमें shopping का कहीं भी लिखा है. That's why A is wrong. So that is why the correct answer here is option C for the fourth question. Right? Let's look at the fifth question. If everybody is okay. All right. Yes. Fine. ठीक है. So fifth question में we are saying what does the author, why does the author say that the mall has been America's public square? That is the question. तो public square क्यों बुलाते हैं उसको? तो वहां पे मार्क किया था हम लोगों ने कि अमेरिका पब्लिक स्क्वायर, उसको नाम ही दे दिया है पूरा का पूरा, दिस वन, राइट? सो why has it been called America's public place? Because people used to go for more than shopping। बहुत सारे लोग from all strata of life, different kinds of people, सारे के सारे लोग आके वहां पे एक दूसरे से मिलते थे। And that is basically why it has been called a public square for the last 60 years। ठीक है, थोड़ा फूड लॉसी था, थोड़ा कार पार्किंग का इशू था, बट देन अगेन एवरीथिंग वाज फाइन एट द एंड। इट वाज जस्ट बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे पीपल यूज्ड टू कम एंड मीट एंड एक डाइवर्स सेट ऑफ पीपल आते थे, राइट? दैट वाज बेसिकली व्हाई मोर और लेस इट वाज कॉल्ड अमेरिकास पब्लिक स्क्वायर। फाइन। मॉल्स डिड नॉट बार एनीबॉडी फ्रॉम एंटरिंग द स्पेस। अब ये तो एक पार्ट है, मतलब एंटरिंग नहीं था, इंटरेक्शन वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट? सिर्फ एंटरिंग द स्पेस वाज नॉट रियली, तो दिस इज पार्शियली करेक्ट। तो बार नहीं करते थे, इट इज फाइन, बट देन पीपल यूज्ड टू कम एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट वाज इंपॉर्टेंट।
Then malls were a great place to shop for a huge section of the middle class. Again, we are getting into middle class, right? वहां पे बहुत सारे बोले हैं, ग्रैंड मदर्स बोला हुआ है, शॉपिंग ही नहीं बोला हुआ है, बोला है कि भाई मतलब तुम्हारा ब्लाइंड डेट वहां पे होता था बोला हुआ है, यू हैव यूज्ड टू गो एंड टेक फैमिली पिक्चर्स इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड देयर, ये सारी चीजें बोली हुई है, तो सिर्फ शॉपिंग नहीं आता यहाँ, तो ये भी मतलब पार्शियली पार्शियली करेक्ट है, ठीक है? तो मिडिल क्लास इज वन रेस्ट्रिक्शन एंड शॉपिंग इज अनदर रेस्ट्रिक्शन, सो दिस इज अगेन पार्शियली करेक्ट. Fine. Malls were a hangout place where families grew close to each other. अब families बोला, इससे families नहीं है ना. People from all walks of life visited and अगर वो दोनों related नहीं भी हैं, तो भी they will interact with each other. So that was basically the thing. तो एक बार पैराग्राफ पे वापस जाते हैं and I'll just show you. Yeah. So यहाँ पे ये दिया हुआ है. It was the home of first jobs and blind dates, place for family photos, ear piercings. Gods, grandmothers could somehow walk through the same doors and find something they all liked. ठीक है, सो दे ऑल लाइक करके बोला हुआ है, फाइंड समथिंग दे ऑल लाइक, सो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट फैमिली जो आके मिले थे वहाँ, ठीक है? अभी यहाँ पे मतलब बेसिकली मतलब ह्यूज स्वॉथ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिका बोला हुआ है, बट देन अगेन देयर इज लाइफ बियॉन्ड मिडिल क्लास अमेरिका एज वेल, सो अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के पीपल यूज्ड टू गो एंड विजिट दी मॉल्स दैट वाज देयर, ठीक है? तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेट्स लुक एट दी ऑप्शन दैट वी हैव. एंड फोर्थ ऑप्शन हियर इज मॉल्स आर अ ग्रेट प्लेस फॉर एवरीवन टू गैदर एंड इंटरेक्ट, राइट? सो गैदर भी कर सकते हैं, इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, एवरीवन के लिए है. तो ये वाला एवरीवन डिड नॉट बार एनीबॉडी यहाँ पे एड्रेस हो रहा है. शॉप के जगह पे गैदर एंड इंटरेक्ट वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक स्क्वायर है वो, शॉपिंग सेंटर तो नहीं बोल सकते उसको, राइट? सो दैट वाज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. That is why malls were a great place for everyone to gather and interact. That is the best option of the options that have been given. फाइन. सो ए बी सी तीनों ऑप्शंस अगर देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग है. ऑप्शन डी इज बेसिकली द वन जहां पे एवरीथिंग इज मोर और लेस सॉर्टेड. दिस वाज अगेन अ मैनेजेबल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गलती आइडियली नहीं होनी चाहिए थी. सो इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज लेट मी नो, और एल्स आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? Right. So, last question of this particular passage, the author describes perfume clouds in the department stores in order to. अब ये perfume clouds in the department stores कहाँ पे आता है? So we have seen it somewhere here. Yeah, here. Think of your mall or think of the one you went to as a kid. Think of the perfume clouds in the department stores, fountains splashing below the skylights, cinnamon wafting from the food court, and so on and so forth. ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है फॉर यू टू इमेजिन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस. नॉस्टैल्जिया जो बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया, राइट? नॉस्टैल्जिया लिटरली मींस एल्जिया. एल्जिया इज पेन, ठीक है? एल्जिया इज द रूट वर्ड फॉर पेन. नॉस्टैल्जिया मतलब जो हो चुका है, द वन दैट यू नो, नॉसिस वगैरह होता है उस टाइप का कुछ, ठीक है? समथिंग दैट यू नो दैट गिव्स यू पेन, दैट इज नॉस्टैल्जिया. तो ये क्या होता है? पुराने एक्सपीरियंसेस जो मैं सोच के मुझे पेन हो रहा है थोड़ा, दैट इज बेसिकली नॉस्टैल्जिया. फाइन. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इवोक. नॉस्टैल्जिया यहाँ पे हो रहा है, तो वो मेमोरीज हम लोग इवोक करने की कोशिश कर. सो लेट्स सी. इन ऑर्डर टू, हाँ, तो यहाँ पे इवोक मेमोरीज बाय पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ मॉल्स, तो काफी सारी चीजें दी है जहाँ पे पॉजिटिव इमेजिनेशन करके एक्सपीरियंसेस इमेजिनेशन करने हैं. अब यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, दे आर ट्राइंग टू अटैक योर सेंसस, सेंसरी थोड़ा सा आपका देख रहे हैं कि कैसे आप उसको रिएक्ट करते हो. दे आर ट्राइंग टू गिव यू दी विफ ऑफ स्माइल्स, स्प्लैशिंग ऑफ वाटर करके ऑडिटरी सेंस को इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं. वैसे करके दे आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व योर सेंसस व्हेन यू आर इमेजिनिंग वॉल्स, राइट? सो इवोक मेमोरीज बाय पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ वॉल्स इज अ गुड ऑप्शन हियर. Describe the smells and sights of malls. अब describe is a very small word, right? Describe is literal. तो यहाँ पे परफ्यूम क्लाउड से डिपार्टमेंट स्टोर्स बताने की जरूरत नहीं है, राइट? दे कैन जस्ट से कि वहां पे परफ्यूम का स्मेल आता था, परफ्यूम का फ्रेग्रेंस आता था, इज व्हाट दे कैन से, एंड गेट डन विद इट, राइट? दे नीड नॉट टॉक अबाउट परफ्यूम क्लाउड्स आता था एंड सिनेमन का whiff आता था एंड स्प्लैशिंग होता था ऑफ द वाटर फाउंटेन एंड ऑल दोस थिंग्स. दे नीड नॉट से. तो describe is a very small word. I would say it was not a very effective word. Evoke memories is much stronger, right? तो ये वाला जो है ना, ये थोड़ा फीका पड़ जाता है कंपेयर टू ऑप्शन. ऑप्शन सी, emphasize that all brands are available under one. ये तो बिल्कुल भी नहीं. ये तो all brands मिल रहे करके सबका प्लेसमेंट के ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. They are trying to make you relive the experiences that you had as a kid. Show that malls smelt good because of the various stores and food court. Again, this is too literal, right? Smelt good. अब सिर्फ स्मेल की बात नहीं हो रही वहां.
दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड करें मॉल के अंदर आपके बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं, ये बताने के लिए दे आर गिविंग यू गुड प्रॉम्प्ट्स सो टू से, ठीक है, जिससे अच्छा इमेजिनेशन आए। तो ऑप्शन ए और बी के अंदर अगर बीच में देखा जाए तो ए इज डेफिनेटली मोर इम्पैक्टफुल। बी इज फाइन, डिस्क्राइब द sights and small smells of malls, smells and sights of malls is fine, but evoke memories by painting a picture is much more poetic, which the paragraph, I think the paragraph was designed to evoke memories, right? It was not designed to just describe the smells and sights. अगर बोला था कि मतलब if once you go there, you will see a pizza hut to your left and you will smell cheese, का कैसे बोलते तो फिर बात अलग था, क्योंकि वहां पे मैं मतलब थोड़ा सा सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ स्मेल्स एंड साइट्स, बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा, यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू रीलिव द एक्सपीरियंस, सो दैट इज अ डीपर मीनिंग। Fine. So that was passage one. Passage two पे जाने से पहले again I'll just reiterate. The first thing is of course that those of you who have joined us now or have joined us later, for them the quiz goes live the evening before this session. So tomorrow we have a session on geometry. So that quiz should be live sometime soon, and so you can take that, and you can come and sit for the session tomorrow. That is the first thing. If you have enrolled for the particular course, so make sure that you have clicked on the confirmation link that you would have been sent on email. अगर वो नहीं करोगे, you will not be able to take the test. तो वो एक कर लेना, right? So that is basically what we have, and I have a surprise for all of you. Over the next couple of days, we will be releasing 3 videos that will cover the syllabus of the CAT. So be ready for those videos. I think one video should be up tomorrow in the morning. So make sure that you have a look at that video as well. ठीक है, now let's move to passage 2. Passage 2 के अंदर again we'll have a look at this particular passage. Now this is a passage from science, which is obvious from the first word that you read. Scientists have long recognized, of course science का ही passage होना चाहिए. So that is basically what we have here, and in terms of what the passage is trying to say, let's read this passage and mark all the important things that we can see. ठीक है, अभी धीरे 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 मार्किंग्स कम होते जाएंगे. आई विल नॉट मार्क एवरीथिंग, आई विल मार्क व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज व्हाट इज नीडेड, एंड आई जस्ट राइट अ जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ, जो 3-4 वर्ड उस पैराग्राफ को डिस्क्राइब करते हैं. आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू सिट एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी पैराग्राफ ड्यूरिंग द टेस्ट, बट एटलीस्ट मेंटल नोट बना लो कि पैराग्राफ कर क्या रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट हैव लॉन्ग रिकॉग्नाइज द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी. इनक्रेडिबल अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड, डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीशीज, but they thought it reflected evolutionary changes that unfolded imperceptibly. कैसे अनफोल्ड हुआ? imperceptibly, adverb, right? So imperceptibly, तो पहले क्या लगता था लोगों को, साइंटिस्ट को पता है कि बहुत डाइवर्सिटी है एक स्पीशीज के अंदर. अब स्पीशीज मतलब हम लोग जो है होमोसेपियंस जो हम बोलते हैं, वी आर अ स्पीशीज. ठीक है, तो स्पीशीज के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है. तो पहले लोग बोलते थे कि मतलब धीरे 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 करके डाइवर्सिटी होगी, ऐसे सोचा था हम लोगों ने. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स धीरे 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 स्पीशीज में चेंजेस आएंगे. That divergence between populations within a species was enforced according to Ernst Mayr, the great evolutionary biologist of the 1940s, where the population was separated. ठीक है, तो डाइवर्जेंस जो होगा ना, वो एनफोर्स कब होगा? व्हेन अ पॉपुलेशन वाज सेपरेटेड. ठीक है, तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? अलग अलग लोग दिखना शुरू हो जाएंगे. अब ये अर्न्स्ट मेयर क्या बोल रहे हैं? That people will start to look different, or the divergence will happen when a population is separated from the rest of the species by a mountain range. So mountain से separated हैं या फिर desert से separated हैं, जिसकी वजह से why after separation what happens? Preventing breeding. So breeding जो है ना वो prevent हो जाती है because of this separation across the divide over geologic scales of time. ये अभी ये वाला पार्ट भूल जाओ, बट अभी तक अगर समझ में आ रहा है पैसेज, देन यू आर फाइन, राइट? व्हाट इज द पॉइंट? डाइवर्सिटी है. पहले लगता था कि डाइवर्सिटी बहुत धीरे 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 डाइवर्सिफाई होती जाती है, बट रिसेंटली अकॉर्डिंग टू अर्न्स्ट मेयर 1940s में क्या अर्न्स्ट मेयर ने फाइंड आउट किया? दैट जो डाइवर्जेंस है ना वो एनफोर्स होता है. कब डाइवर्जेंस होता है? जब पॉपुलेशन को ना फिजिकल बैरियर से सेपरेट किया जाए, जैसे माउंटेन, डेजर्ट, कुछ तो एक बड़ा सा बैरियर दोनों के बीच में आ गया ना, फिर ये स्पीशीज अलग हो जाएगी, ये स्पीशीज अलग हो जाएगी, और फिर वो बनेंगे डाइवर्स स्पीशीज. दैट इज व्हाट अर्न्स्ट मेयर हैज सेड. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली वी हैव बीन टोल्ड दैट diversity within a species or among a species, ठीक है, is due to separation. Fine, separation की वजह से diversity आती है. That is basically what has been mentioned in the first paragraph. Second paragraph, in the middle 1960s, the biologist Paul Ehrlich
author of the population bomb 1960 doesn't matter, right? And his Stanford University colleague doesn't matter. Peter Raven challenged mayor's ideas of separation. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चैलेंज किया भाई उन्होंने, अपने जो मेयर साहब की आइडिया थी उसको चैलेंज कर दिया. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैड स्टडीड चेकर स्पॉट बटरफ्लाइज. ये कोई तो चेकर स्पॉट बटरफ्लाइज करके कुछ तो एक होता है स्पीशीज, उनको स्टडी किया उन लोगों ने. कहीं पे तो जैस्पर रिज बायोलॉजिकल प्रिजर्व इन कैलिफोर्निया में कुछ तो एक बटरफ्लाई होते हैं, उनको स्टडी किया. एंड soon became clear that they were not examining a single population. ठीक है. एंड इट soon became clear that they were not examining a single population. मतलब क्या हो गया, they were examining multiple populations. अब एक ही प्रिजर्व के अंदर उन लोगों ने एक ही स्पीशीज को देखा, बट उनके अलग अलग पॉपुलेशन थे. राइट. तो जोग्राफिकल सेपरेशन जो इन्होंने बोला है, मेयर साहब ने जो बोला था कि भाई मतलब पॉपुलेशन शुड बी सेपरेटेड, दे शुड बी सेपरेटेड जोग्राफिकली, दे शुड बी सेपरेटेड जियोलॉजिकली, बीच में माउंटेन रेंज होना चाहिए, डेजर्ट होना चाहिए, वो सब तो यहाँ पे इशू ही नहीं है. वो एक ही प्रिजर्व के अंदर है और उनका मतलब पॉपुलेशन तो अलग अलग दिख रहे हैं. दैट इज व्हाट दीज पीपल फिगर्ड. Now, through years of capturing, marking, and then recapturing the butterflies, बहुत स्टडी करने के बाद they were able to prove that within the population spread just over 50 acres. तो सिर्फ 50 acres population के अंदर there were three groups that rarely interacted despite their very close proximity. तो 50 acres में उनको तीन ग्रुप मिल गए. अभी वहां पे कोई भी गैप नहीं था, डेजर्ट नहीं था, माउंटेन नहीं था, कुछ नहीं था, बट फिर भी वो 50 एकड़ के अंदर तीन ग्रुप कैसे मिल गए? जबकि मेयर ने तो बोला था कि भाई जोग्राफिकल सेपरेशन नहीं होगा तब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगा. तो ये डाइवर्सिटी आया कहां से? ठीक है. दैट्स व्हाई मेयर वाज रॉन्ग इज व्हाट दिस पीपल आर ट्राइंग टू से. Among other ideas, Ehrlich and Raven argued a strong word in a now classic paper from 1969 that uh, gene flow was not as predictable and ubiquitous as Mayer and his cohort maintained. तो जीन फ्लो जो होता है ना वो इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होता और यूबिक्विटस. अब यूबिक्विटस का मतलब नहीं पता तो भी चलेगा, डजंट मैटर, राइट. फॉरगेट अबाउट यूबिक्विटस, क्या होता है मुझे नहीं पता, ये फॉरगेट अबाउट. ठीक है. इफ एनीबॉडी नोज व्हाट इज यूबिक्विटस प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल शेयर विद एवरीवन. बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस समझ लो कि मुझे यूबिक्विटस का मतलब ही नहीं पता क्या होता है. ठीक है. एज मेयर एंड हिज कोहॉर्ट मेंटेन्ड एंड दस इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस बिटवीन नेबरिंग ग्रुप्स वाज प्रोबेबली कॉमन. अब ये बहुत ज्यादा साइंस आ गया इसके अंदर. नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन. इसको पूरा का पूरा ये लाइन को भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं इसके पीछे भागने की, क्योंकि दो बार पढ़ के भी ये शायद समझ में नहीं आएगी ये लाइन. ठीक है. यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लाइन इवन आफ्टर रीडिंग ट्वाइस इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड द फिनोमेनन एट ऑल. फाइन. द ओनली थिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज भाई मेयर की बात गलत थी, ये अर्लिच और रेवन ने बताया हुआ है. दैट्स. They also asserted that isolation and gene flow, isolation जो पहले बोला था separation, वही isolation होता है, and gene flow were less important to evolutionary divergence. तो divergence के लिए isolation बहुत ज्यादा important नहीं है, is what these people are trying to say. That natural selection. अब इन लोगों ने नया कॉन्सेप्ट लेके आ गए कि भाई ये नेचुरल सिलेक्शन जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, स्पीशीज के अंदर डाइवर्जेंस. ठीक है. सो डाइवर्जेंस के लिए नेचुरल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. भाई जीन फ्लो और आइसोलेशन का कोई जरूरत नहीं है. ओके, व्हाट दिस पीपल सेड. अब यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया. अगर आपको नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है नहीं पता, यू कैन रीड दिस. अगर पता है यू कैन मूव. उसके आगे भी फॉर एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, अगेन इट इज नॉट नीड. तो बेसिकली यहाँ पे अपना पैराग्राफ खत्म हो जाता है इन अदर वर्ड्स, राइट. क्योंकि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोस थिंग्स इफ यू हैव अंडरस्टूड मोर और लेस व्हाट दिस पैसेज इज ट्राइंग टू. तो अभी यहाँ पे फिर भी पढ़ लेते हैं. When factors such as mate choice, weather, disease, predation, ये सब चीजों की वजह से अगर better adapted individuals आते हैं to survive and pass on their successful genetic traits, ये होता है natural selection. अगर आपने कोई भी मीम देखी हुई है या फिर आपने कहीं पे भी कुछ भी किया हुआ है, I'm pretty sure you would have heard of this guy called Charles Darwin, right? Survival of the fittest जो बोलते हैं, right? तो natural selection वो होता है कि nature खुद ब खुद select करता है. If you are good enough, nature will ensure that you progress and you procreate. एंड इफ यू आर नॉट गुड इनफ, नेचर तुमको उड़ा देगा, कुछ तुमको हेल्प नहीं करेगा नेचर. ठीक है. तो नेचुरल सिलेक्शन इज बेसिकली व्हाट इट मींस. फॉर एग्जांपल, अर्लिक एंड रेवन suggested that without the force of natural selection, an isolated population would remain unchanged, and that in other scenarios, natural selection would be strong enough to overpower gene flow. अब अगेन, I don't know what this means, and I don't care what this means. क्वेश्चन देखेंगे, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत ही साइंटिफिक सा, वी विल मोर और लेस अवॉइड दैट क्वेश्चन, वो भी चलेगा. बट तीन क्वेश्चन के पैसेज में मेरे को बहुत टाइम पास नहीं करना है, राइट. लाइक आई सेड यस्टरडे, in RCs, let's say for example you are going with the intent of getting to correct one wrong in this particular thing, so you are looking at a grand total of 5 marks. हमने क्या बोला था कल कल जो ये सेशन में हमने डिस्कस किया था, whenever we are talking about it in terms of marks gained per minute,
अगर आपके पास 40 मिनट्स है टू गो थ्रू द आरसी सेक्शन एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ स्कोर ऑफ लेट्स से अराउंड 40 मार्क्स इटसेल्फ लेट्स से, तो मेरे को 5 मार्क्स कमाने के लिए ना 5 मिनट से ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। तो मैं ये पूरा का पूरा पैसेज 5 मिनट में खत्म करना है ये पैसेज। फाइन। नाउ आई कांट रियली गेट स्टक ऑन नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ये कौन है वो कौन है, डाइवर्जेंस क्या होता है, जीन पूल क्या होता है, ओवर पावर जीन फ्लो क्या होता है, वो सब भी मेरे को नहीं पूछता है। आई डोंट वांट टू गेट इट। ठीक है। आई लुक एट दोस 3 क्वेश्चंस एंड आई विल सी इफ आई कैन आंसर एटलीस्ट 2 ऑफ देम। अगर मैं करता हूँ 2 क्वेश्चन आंसर, मेरा काम खत्म होगा। फाइन। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following best sums up Ehrlich and Raven's argument in their classic 1969 paper? ठीक है। तो अर्लिक और रेवन ने कुछ एक आर्ग्यूमेंट डाला था, तो क्या वो आर्ग्यूमेंट था? Ernst Mayr was wrong in identifying physical separation as the cause of species diversity. Okay, makes more or less sense अगर देखते हैं तो। Checker spot butterflies in the 50-acre Jasper Ridge Preserve formed 3 groups that rarely interacted with each other. ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, राइट? तो चेकर स्पॉट बटरफ्लाइज 3 ग्रुप बना दिए थे, रेयरली इंटरेक्टेड, ये पूरा का पूरा पैसेज में से सेंटेंस उठाया हुआ है। बट ये आर्गुमेंट नहीं है उनका, ये जस्ट एक फाइंडिंग है। आर्गुमेंट ये है कि भाई आपने जो बोला था ना फिजिकल सेपरेशन होना ही चाहिए, वो उतना जरूरी नहीं है जितना आपको लगता था, राइट? इट इज नॉट सेइंग दैट इट वाज रॉन्ग। तो अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, वी विल बी एबल टू सी या दिस वन। दे आल्सो असर्टेड दैट आइसोलेशन एंड जीन फ्लो वर लेस इंपॉर्टेंट। तो ये 1969 के पेपर में क्या बताया गया था, ये आइसोलेशन एंड जीन फ्लो वर लेस इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई वो पूरा का पूरा गलत था, ठीक है। वेर नॉट वॉज नॉट एज प्रेडिक्टेबल एंड एज यूबिक्विटस। दे आर सेइंग कि कुछ हद तक ठीक है, बट पूरा का पूरा वो नहीं है। सो वॉज रॉन्ग इज अ वेरी इंटेंस वर्ड, सो दैट माइट नॉट बी द राइट आंसर। चेकर्स फॉर बटरफ्लाइज, दिस इज टू लिटरल एंड टू पेडांटिक। मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो भी है करके, लिटरली मैं बता रहा हूँ उस चीज को। तो मैं लिटरली बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि भाई उन्होंने इतना पेपर लिखना क्या जरूरत था, आर्ग्यूमेंट क्या था उनका? दिस इज नॉट द आर्ग्यूमेंट, दिस इज द फाइंडिंग। While a factor, isolation was not as important to speciation as natural selection. Yeah, very nice. These people believe in natural selection. They are saying that natural selection is the best factor that is there, right? Isolation उतना बड़ा factor नहीं है जितना आप बोल रहे थे. So this is a very nice option to have. Gene flow is less common and more erratic than Mayer and his colleagues claimed. अब gene flow is less common तो नहीं बोला उन्होंने, isolation का कुछ पार्ट नहीं है करके बोला हुआ है। Gene flow is less common and more erratic, ये सब erratic वगैरह ये सब words यूज ही नहीं किए हुए हैं। So this is of course not what the passage is trying to say. ठीक है। So option A and option C मेरे पास बचता है। Was wrong is too harsh a word. They are saying that कुछ हद तक हो सकता है, but these are not the major causes. The major factor is natural selection, and that's why C is the better option among A and C, or between A and C. Okay, that was the first question that we had in this particular passage. Let's move on to the next question. If this one is clear, I think we'll move on to the next one. Yeah, those of you are there, just let me know if this is clear so that we can move on to the next one. Yeah, fine. Okay, so we'll move on to the next question. We'll move on to the second question of this particular passage. All of the following statements are true according to the passage except what? So first option is gene flow contributes to evolutionary divergence. ठीक है। जीन फ्लो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। अब ये कॉन्ट्रीब्यूट्स बोला गया है, मेजर फैक्टर है माइनर फैक्टर ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूट्स बोला हुआ है। नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, जीन फ्लो वाज नॉट एज predictable एंड यूबिक्विटस बोला हुआ है, एंड इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस बिटवीन नेबरिंग ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन वाज प्रोबेबली कॉमन। दे आल्सो सेड दैट आइसोलेशन एंड जीन फ्लो आर लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि नॉट इंपॉर्टेंट या डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। जीन फ्लो कॉन्ट्रीब्यूट्स विच इज फाइन, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है, इज व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू से, ठीक है। सो जीन फ्लो इज नॉट अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। So very thin line between saying that contributes and does not contribute, right? So दो अलग चीजें हैं। तो contribute कर रहा है but major contributor, that is what the passage is trying to say. So this is true. The population bomb question dominant ideas about species diversity. So let's look at population bomb. Yeah, it's here. ठीक है।
द ऑथर ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्ब 1968। अब पॉल अर्लिक जो था ना, वो पॉपुलेशन बॉम्ब का ऑथर था, यस। बट यहाँ पे बोला नहीं है कि मतलब उसने पॉपुलेशन बॉम्ब में सब चीजें लिखी थी कि नहीं लिखी थी। इनफैक्ट जो पेपर लिखा था वो 1969 में लिखा हुआ था, जबकि पॉपुलेशन बॉम्ब 1960 में पब्लिश हो चुका है, राइट। दे आर आर्ग्यूइंग इन दैट पेपर ऑफ 1969, नॉट द पॉपुलेशन बॉम्ब। पॉपुलेशन बॉम्ब सिर्फ इसलिए दिया है वहां पे दैट बिकॉज दिस गाय अर्लिक हैड रिटन पॉपुलेशन बॉम्ब, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग दैट वाज देयर। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी नाइस way of asking these kind of questions, especially when it comes to the cat. Because what happens is population bomb दिया हुआ है, species diversity के बारे में dominant ideas question भी किए गए हैं, दोनों के अंदर author same है, but does it mean that population bomb के अंदर ही दिया हुआ है? Not really. So if you are reading it casually or you are reading it very fast ना, it's very easy for you to get stumble on this and say कि नहीं ये तो सही है करके. But this is basically false because population bomb में क्या हुआ है मुझे नहीं पता, right? So this is a false statement, could be our answer. Evolutionary changes unfold imperceptibly over time, ये बोला हुआ है, पूरा वैसे का वैसे दिखा हुआ है. It reflected evolutionary changes that unfolded imperceptibly over millions of years, ये बताया हुआ है. तो डाइवर्सिटी है, बट उनको लगा था कि वो डाइवर्सिटी कैसे आती है, imperceptibly, धीरे 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स की वजह से ही आती है करके बोल, राइट, और धीरे धीरे बनता है करके बोल. बट ऐसा नहीं है, बट इवोल्यूशनरी चेंजेस अनफोल्ड imperceptibly हो रहे हैं, ये सही बात है. So this is true. Last one, checker spot butterflies are known to exhibit speciation while living in close proximity. Yes, this was the study. 50 एकड़ के कैंपस के अंदर उनको 3 स्पीशीज मिल गए वहां पे, या 3 पॉपुलेशंस मिले अलग अलग, तो वहां पे स्पीसिएशन हो गया उनका. तो दिस इज फाइन. सो द वन दैट इज फॉल्स इज दिस वन. तो जब भी ऐसे कुछ दिया होगा ना, एकदम एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन दी होगी ना, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि पॉपुलेशन बॉम्ब लिखा गया था, अर्लिंग नहीं लिखा था. स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में अर्लिंग ने ही डिबेट किया था, बट वाज द पॉपुलेशन बॉम्ब द सोर्स जहां पे ये सब किया था, दैट वी कांट से, और माइट नॉट बी ट्रू. ठीक है. सो ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट दिस वन. दैट इज बेसिकली द आंसर. लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. द ऑथर डिस्कसेस मेयर, अर्लिक एंड रेवल. तो 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू हमारे पास, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू अदर. मेयर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है एंड अर्लिक रेवन का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और बोल रहे हैं कि भाई दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, एंड डिबेट दोनों के बीच में था. मेयर बिलीव्ड इन समथिंग, अर्लिक रेवन फाउंड समथिंग व्हिच वाज कॉन्ट्राडिक्टिंग व्हाट मेयर हैड प्रपोज्ड. ये बताया गया है. इवोल्यूशन इज अ सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक. अब यहाँ पे इवोल्यूशन तो कहीं पे दिया नहीं, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीसिएशन. एक स्पीशीज के अंदर अलग अलग पॉपुलेशन कैसे हो सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग. इवोल्यूशन इज अ सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑलटुगेदर. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है. अर्लिक एंड रेवल्स आइडियाज अबाउट इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट. अब ये भी कहीं पे बोला नहीं है, बोला गया है कि दे प्रेजेंटेड वन पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे जो मेयर ने बोला था ना वो गलत हो सकता है. दैट इज व्हाट दे आर सेड. वाइडली डिबेट, वाइडली एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट तो कहीं भी बोला नहीं है. उसके अंदर भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि राइट है कि रॉन्ग. And last one, the causes of speciation are debated by scientists. This is fine. Mayer और Ehrlich Raven वाला जो टीम थी, these two groups were fighting against each other या debating against each other कि भाई speciation हुआ कैसे. मेयर बोलता है मेरे को तो फिजिकल सेपरेशन चाहिए, अर्लिक रेवन बोलते हैं कि नहीं हो तो भी चलेगा फिजिकल सेपरेशन, ये देखो बटरफ्लाई, राइट. सो यहाँ पे दिस कुड बी द आंसर. दिस इज फाइन, दिस इज अ गुड ऑप्शन. चेकर स्पॉट बटरफ्लाइज ऑफर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अर्लिक एंड रेवंस आइडियाज अबाउट स्पीशीज. तो मेयर कहाँ से आ गया इसके अंदर, राइट. सो मेयर तो ये ऑप्शन के अंदर आ ही नहीं रहा ना, ये सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई अर्लिक और रेवन के आइडिया के लिए चेकर स्पॉट बटरफ्लाई मस्त एग्जांपल है, बट मेयर तो उसमें है ही नहीं. पैसेज के अंदर मेयर का नाम क्यों लिखा ऑथर ने, बिकॉज ऑथर को बताना था कि भाई मेयर ने कुछ बोला, उसको डिबेट कर रही है. तो सो कॉसेस ऑफ स्पीसिएशन जो है ना, उसको डिबेट कर रहे हैं साइंटिस्ट. दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी माय आंसर. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी. फाइन. सो आई होप दिस पैसेज वाज आल्सो क्लियर. And again, if there is something, please put it in the comment section. I will try to address it. But abhi ke liye, I am assuming that all of you are getting whatever we are doing. So I hope everybody is positive about all these questions that are there. ठीक है. एक last passage देख लेते हैं, 3 questions, and then we will close the session. ठीक है. Now last passage is in terms of the Olympics and sports mega events. उसके बारे में कुछ है, तो let's read this. Do sports mega events like Summer Olympic Games benefit the host city economically? ठीक है. तो बेनिफिट दी होस्ट सिटी को बेनिफिट होता है कि नहीं, देख क्वेश्चन. आंसर क्या है, डिपेंड्स. मतलब सीधा सीधा यस नो आंसर नहीं है, डिपेंड्स. बट द प्रोस्पेक्ट्स आर लेस देन रोजी. लेस देन रोजी मतलब कम है प्रोस्पेक्ट्स, राइट. देयर इज अ लोअर चांस.
that hosting Summer Olympic Games will benefit the host city. ठीक है? The trick is converting several billion dollars in operating cost. बहुत सारा पैसा जा रहा है operating cost during the 17-day fiesta into a basis for long-term economic returns. तो जो कुछ दिनों के अंदर मैं सेवरल बिलियन डॉलर्स उड़ा रहा हूँ, उसका मेरे को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिटर्न में कैसे कन्वर्जन करना है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है वेदर समर ओलंपिक गेम्स बेनिफिट करते हैं कि नहीं करते. These days, the Summer Olympic Games themselves generate total revenue of 4 billion to 5 billion. राइट. समर ओलंपिक गेम्स जो है ना वो 4 बिलियन टू 5 बिलियन तो सीधा रेवेन्यू मिल जाता है. बट ये बिलियंस ऑफ डॉलर जो हम खर्चा कर रहे हैं वो इससे ऑफसेट नहीं होते. व्हाई? बिकॉज लायन शेयर गोज टू द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी, नेशनल ओलंपिक्स कमिटीज, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, यहाँ पे सब पैसा चला जाता है. तो तुम्हारे पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा. सो ओलंपिक से डायरेक्टली तुमको पैसा नहीं मिलने वाला. दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर. Any economic benefit would have to flow from the value of the games, right? So value से हम लोग को पैसा निकालना है, रेवेन्यू से पैसा नहीं निकाल सकते, राइट? सो वैल्यू से कैसे पैसा निकालेंगे? एज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिटी. मतलब मैंने बोला कि भाई अभी टोक्यो में अगर हो रहा है ओलंपिक, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, देन पेरिस के अंदर बहुत सारा टूरिज्म बढ़ जाएगा. इवन आफ्टर द ओलंपिक्स आर डन, पीपल विल फ्लॉक टू पेरिस टू सी कि भाई मतलब क्या क्या यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए थे, राइट? सो वो एक एडवर्टाइजमेंट होगी फॉर द सिटी. They will again show you Eiffel Tower. They might again show you the Louvre. वो सब तो दिखाते रहेंगे and then you will be inclined towards going to Paris to experience those things. तो एडवर्टाइजमेंट हो जाती है फर्स्ट. सेकेंड, न्यू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर जो बना दिया हम लोगों ने फॉर दी गेम्स, वो पब्लिक भी यूज कर सकती है. एंड ऑनगोइंग यूज ऑफ द न्यू फैसिलिटीज. तो जो न्यू फैसिलिटीज बनाई है उनका ऑनगोइंग यूज. तो न्यू फैसिलिटीज मतलब क्या? जो भी हमने स्टेडियम्स बनाए हुए हैं, जो भी रूम्स वगैरह बनाए होंगे, जो भी बनाया होगा, पूल्स बनाए होंगे लेट्स से, वो सारी चीजें यूज भी कर सकते हैं आगे जाके. तो ये तीन जगह से पैसे आ सकते हैं वैल्यू से. कैसे? वन इज एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिटी, टू ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया है वहां से, एंड जो गेम्स के लिए हमने फैसिलिटीज बिल्ड किए हैं उससे. ये तीन जगह से पैसा आए. ठीक है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर इज वन थिंग दैट आई हैव सीन. एनीबडी अमंग अस इज फ्रॉम दिल्ली, यू माइट बी एबल टू टेस्टिफाई दिस. बट आई हैड गॉन टू दिल्ली 2 years, 2010, 2011. 2010 में जब मैं गया था तो इट वाज अ स्ट्रगल रीचिंग एफएमएस. विश्वविद्यालय का स्टेशन बनाया था उस टाइम पे. बट कॉमनवेल्थ गेम्स हैपेंड इन 2010. 2011 व्हेन आई वेंट देयर, द इंफ्रास्ट्रक्चर हैड done a 180 degrees, right? So it was much better in 2011 than it was in 2010. So I can relate to that new transportation and communications infrastructure in this particular context. And I'm sure some of you might have also experienced. ठीक है. नाउ एविडेंस सजेस्ट दैट द एडवर्टाइजिंग इफेक्ट इज फॉर फ्रॉम सर्टेन. अब एक एक करके टैकल करते हैं. एडवर्टाइजिंग तो बहुत ज्यादा होगा ऐसा बोल नहीं सकते. इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिटी एंड द इफेक्टिवनेस. तो इंफ्रा बेनिफिट जो है वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है. एडवर्टाइजिंग का सर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है, फार फ्रॉम सर्टेन है. एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लानिंग. फैसिलिटी जो लास्ट वाला है इज डूबियस, तो ये भी डूबियस है. तो भाई सब चीजों में सर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है. एडवर्टाइजिंग से पैसा आएगा कि नहीं बोल नहीं सकते. इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है. फैसिलिटी से पैसा आएगा कि नहीं बोल नहीं सकते, राइट? तो ये सब चीजें हैं. तो इतने बड़े बड़े जो है वेलोड्रोम्स, नेटेटोरियम्स, 1 लाख सीट वाले स्टेडियम्स, अब इनको हम कहाँ पे यूज करेंगे डेली बेसिस? ठीक है. कौन सा ऐसा मैच वहां पे होस्ट करेंगे जिसमें 1 लाख पीपल विल कम एंड सिट, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट इज डूबियस. बोल नहीं सकते इनका यूज कैसे होगा. Then, the latter require a conversion plan for future use. The former are usually doomed to near vacancy. अभी latter और former क्या है? तो यहाँ पे मतलब जो भी है whatever is going on, the velodromes, natatoriums, ये सब चीजें हैं, buildings ये सब किए हुए, and stadiums. The latter require a conversion plan for future use. The former are usually doomed to near vacancy. तो former थे buildings. तो जो बिल्डिंग्स थे वो तो वेकेंट ही रहने वाले हैं. एंड जो स्टेडियम्स थे उनको कन्वर्जन प्लान लगेगा. बिकॉज एज आई मेंशन, 1 लाख लोगों को बिठाने के लिए कौन सा गेम खिलाएंगे वहां, राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम. नाउ hosting the summer games generally require 30 plus sports venues and dozens of training centers. So a lot of stuff is needed, lot of infra is required. Today the bird's nest in Beijing sits virtually empty while the Olympic Stadium in Sydney costs some 30 million a year to operate. तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है. तो इधर इट इज एम्प्टी और इट इज वेरी एक्सपेंसिव. ये दोनों में से कुछ एक हो जाते हैं स्टेडियम्स के बारे में अगर देखें. ठीक है. पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट ओलंपिक्स प्लानिंग टेक्स प्लेस इन अ फ्रेंजीड एंड टाइम प्रेशर एटमॉस्फेयर. प्रॉब्लम क्या है? फ्रेंजीड और टाइम प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर जल्दी जल्दी में वो बन जाता है पूरा का पूरा. इंटेंस कॉम्पिटिशन विद अदर प्रोस्पेक्टिव होस्ट सिटीज. तो जब डिक्लेयर होता है, डिसाइड होता है कि भाई ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले हैं, तो और ईच सिटी विल हैव समथिंग टू शो द अथॉरिटीज. तो वहां पे जल्दी 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 करके एक
बताया जाता है कि भाई ये हमारे पास स्टेडियम्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ दिस वी डिजर्व टू बी दी होस्ट सिटी, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सब सिस्टम है, दैट्स व्हाई वी डिजर्व टू बी दी होस्ट, ये दिखाई देता है। बट ये बहुत ही फ्रेंजीड और टाइम प्रेशर एनवायरनमेंट होता है। तो नॉट ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर कंटेम्पलेटिंग द फ्यूचर शेप ऑफ एन अर्बन लैंडस्केप। मतलब ऑप्टिमल कंडीशंस नहीं है कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं सोचता, बट ऑप्टिमल कंडीशन नहीं है, बहुत प्रेशर में मैं सोच रहा हूँ अबाउट फ्यूचर। अनदर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट अर्बन लैंड इज जनरली स्कार्स। तो अर्बन सिटीज में होने चाहिए सब ओलंपिक्स, क्योंकि सिटी में होना चाहिए। अब सिटी में करने के लिए कि भाई अर्बन लैंड तो है ही नहीं यहाँ पे, तुम लोगों को हाउसिंग दोगे, वहां पे कुछ इंडस्ट्रीज क्रिएट करोगे कि ओलंपिक गेम होस्ट करोगे, दैट इज द क्वेश्चन। The new facilities often stand for decades or longer. बहुत टाइम तक वो रह जाते हैं facilities. Even if they have future use, are they the best use? Are they the best use of the precious urban real estate? तो real estate का ये best use है कि नहीं है? ठीक है? तो यहाँ पे we are talking about urban landscape, uh, planning, frenzied planning. I will just use the word. It's a nice word. Frenzied planning. That's why उसका long term मतलब बहुत ज्यादा planning करने के लिए time नहीं बचता. That is the issue. Further, cities must consider the human cost. अब human cost भी आ गया इसके अंदर. Residential areas often are raised and citizens relocated. अब उनको compensation preparation कुछ मिलता नहीं है. Life is made more hectic and congested. There are, after all, other productive uses that can be made of vanishing fiscal resources, right? तो vanishing fiscal resources. तो human cost है, पैसे हमारे जा रहे हैं यहाँ पे, अब उसका यूज करके हम कुछ और कर लेंगे ना, ये ओलंपिक गेम्स होस्ट करने की जगह, राइट? सो दैट इज बेसिकली व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू से। ओलंपिक्स गेम होस्ट करना इज नॉट रियली अ गुड थिंग इन द लॉन्ग टर्म इन मोस्ट सिनेरियोस, क्योंकि बहुत सारे उसके जो यूटिलिटीज है ना वो इफी है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट डूबियस है कि कितना उसका बेनिफिट हो। Now let's look at the questions quickly. So the first question that we have here is the central point in the first paragraph is that the economic benefits of the Olympic Games, right? Economic benefits का क्या होगा? तो यहाँ पे बोला है कि भाई इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो आपको इवेंट के रेवेन्यू से तो नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे वैल्यू से। और वो वैल्यू आपको तीन तरीके से मिलेगा। वन वाज एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सिटी, द सेकंड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो गया है, एंड द थर्ड थिंग इज बेसिकली दी फैसिलिटीज जो यूज कर रहे हैं। ठीक है? जो भी फैसिलिटीज मतलब बिल्डिंग्स एंड स्टेडियम्स जो हो रहा है वो फैसिलिटीज को यूज कर सकते, दैट इज बेसिकली व्हाट वी टॉकिंग। नाउ यहाँ पे आर शेयर्ड इक्वली अमंग द थ्री ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज, ये तो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो इक्वली नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्ट होस्ट सिटी को मिलेगा बट मेजोरिटी ऑफ इट इज टेकन बाय दीज थ्री फेडरेशंस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड। बट ये सेंट्रल पॉइंट नहीं है पैराग्राफ। सेंट्रल पैराग्राफ का पॉइंट ये, पैराग्राफ सेंट्रल पॉइंट ये है कि अगर वैल्यू क्रिएट करना है तो वो लॉन्ग टर्म में ही बनेगा, और वो बनेगा एड इंफ्रा फैसिलिटी से, वैल्यू से ही बनेगा। इट विल नॉट बी बिकॉज ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ टिकट्स। सेकंड ऑप्शन, अक्रू मोस्टली थ्रू रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स एंड टिकट सेल्स, नॉट रियली। एडवर्टाइजमेंट से मोस्टली बनेगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, एड्स कुड बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू लेटर ऑफ द सिटी, ये बोल रहे हैं। टिकट सेल्स से तो बिल्कुल रेवेन्यू नहीं बनता, ये तो पहले ही बोल रहे हैं, बिकॉज अदर कमिटीज will end up taking majority of the money that are coming from ticket sales and revenues. ठीक है? तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी, accrue to host cities if at all, very nice, only in the long term, this is what it's trying to say। तो बोल रहे भाई फायदा होगा ऐसा बोल नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एंड लास्ट ऑप्शन, आर यूजुअली eroded by expenditure incurred by the host city, ये बोला नहीं है एक्सप्लिसिटली एक्सपेंडिचर से इरोड हो गया करके, बट ये बोला है कि आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। So this is not quite true. The correct option here is option C, which should be the right answer as well. ठीक है? Let's move on to the next question. Sports facilities built for the Olympics are not fully utilized after the games are over because, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बोला गया है। तो यहाँ पे दो चीजें थी दैट वी हैड स्पोकन अबाउट, राइट? एडवर्टाइजिंग था, फैसिलिटीज था, और फैसिलिटीज के अंदर दो चीजें बताई गई थी। फैसिलिटीज, वन वाज बिल्डिंग्स सच एज वेलोड्रोम्स और नेटेटोरियम्स एंड स्टेडियम्स, ये दो चीजें बताई गई थी यहाँ पे। बिल्डिंग्स और स्टेडियम्स क्यों यूज नहीं होते? वन, लैटर रिक्वायर्स अ कन्वर्जन प्लान, कन्वर्ट करना है कि भाई वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। एंड बिल्डिंग्स जो है वो वैकेंसी होते हैं, वो तो मतलब आएंगे ही नहीं। ठीक है? तो बिल्डिंग्स वेकेंट रहते हैं एंड स्टेडियम्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, 1 लाख सीटर स्टेडियम्स होते हैं, तो उनको यूज करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज विल नॉट बी फुली यूटिलाइज्ड। So their scale and the cost of operating them are large. Yes, perfect. In fact, वो सिडनी का एग्जांपल भी दिया हुआ है, 300 मिलियन लग रहा है एवरी ईयर, आई होप आई एम राइट, या 30 मिलियन एवरी ईयर लग रहा है टू ऑपरेट। सो दैट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द स्टेडियम वहां पे। सो दैट इज डिफिकल्ट एंड स्केल, 1 लाख लोगों का स्टेडियम आप क्या करोगे बैठने का? सो दिस इज अ गुड ऑप्शन, लेट्स कीप दिस ऑप्शन। देन
their location away from the city center usually limits easy access. अब ये भी यहाँ पे कहीं पे बोला नहीं है कि लोकेशन इज एन इशू करके कहीं पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज नहीं किया है, राइट? तो दैट्स नॉट व्हाई दे विल नॉट बी एबल टू यूज द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज या तो बहुत बड़े हैं या तो वो वेकेंट रहने वाले हैं, ठीक है? द ऑथोरिटीज डू नॉट अडाप्ट देम टू लोकल कंडीशंस। अब ये भी कहीं पे बोला नहीं है कि अडाप्ट नहीं करते करके, तो किधर भी नहीं बोला हुआ है, ठीक है? बोला है कि आपके पास टाइम कम है, प्लान करने के लिए बहुत टाइट होता है, बहुत कंपटीशन होता है, एवरीथिंग इज फाइन, बट ऑथोरिटीज डू नॉट अडाप्ट देम टू लोकल कंडीशन। ये तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो गया, विच इज जनरली नॉट गोइंग टू बी ट्रू। So as we do more RCs, you will see that blanket statements are generally going to be false unless explicitly mentioned in the paragraph. ठीक है? And last वाला option है they become outdated having been built with little planning or under time pressure. अब ये गलत नहीं है, यहाँ पे बोला है कि little planning and under time pressure build करते हैं, ये बोला है, but outdated ये कहीं पे बोला नहीं है, not mentioned in the passage, ठीक है? Outdated नहीं बोला हुआ है, बोला हुआ है कि उसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बड़ा है वो। आई एम नॉट सेइंग दैट द स्टेडियम इज बैड, द स्टेडियम इज ऑफ ब्रिलियंट क्वालिटी, ठीक है? द स्टेडियम कैन बी यूज्ड 5 years later एज वेल, बट उतने मैग्नीट्यूड का इवेंट आएगा नहीं, दैट इज द इशू, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल नॉट बी राइट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। स्केल एंड कॉस्ट दोनों बताया हुआ है, तो स्केल फॉर द स्टेडियम्स एंड कॉस्ट फॉर स्टेडियम स्लैश बिल्डिंग्स जो वेकेंट रहने वाले, फाइन? सो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट इज बेसिकली द पॉइंट। All right, if this is clear, we will move on to the last question of the day and we will finish this particular passage as well. तो एक बार last question देख लेते हैं। All right, the author feels that the games place a burden on the host city for all of the following reasons except that, right? तो host city में burden क्यों क्यों होता है, तो एक बार देख लेते हैं before we answer this question। तो यहाँ पे part of the problem वटेवर, तो इनिशियली यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी किया है, अर्बन लैंडस्केप है हमारे पास, जो हमारा जा रहा है, तो फ्यूचर शेप के लिए बहुत ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है सोचने के लिए कि क्या होने वाला है उसका, तो मे बी दैट कुड बी एन इशू। अर्बन लैंड इज जनरली स्कार्स, तो अर्बन लैंड का इशू है ही है। अब यहाँ पे बहुत सारे सालों तक दोज फैसिलिटीज विल रिमेन, सो इज दिस द बेस्ट यूज ऑफ द प्रेशियस अर्बन एस्टेट, दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन, राइट? तो इससे ज्यादा बेटर हम कुछ कर सकते थे, वही अर्बन रियल एस्टेट, दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, ह्यूमन कॉस्ट है, रेसिडेंशियल एरियाज में से लोगों को निकाल देंगे और लोगों को रिलोकेट करेंगे, दैट इज अनदर प्रॉब्लम, दैट एग्जिस्ट्स। लाइफ इज मेड मोर हेक्टिक एंड कंजेस्टेड, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। और वैनिशिंग फिस्कल रिसोर्सेज, मतलब पहले ही पैसा कम है, उसके अंदर हम लोग और पैसा डाल के ये नुकसान वाला डील क्यों कर रहे हैं, वही समझ में नहीं आ रहा है, राइट? सो दैट इज बेसिकली द पॉइंट। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, लेट्स लुक एट द ऑप्शंस वंस। दे डाइवर्ट कार्स अर्बन लैंड फ्रॉम मोर प्रोडक्टिव यूजर्स, परफेक्ट, ब्रिलियंट, यही बोला गया है कि भाई डाइवर्ट कार्स अर्बन लैंड पहले ही कम है, उसको तुम जाके उधर वो स्टेडियम बना रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट, राइट? सो डेफिनेटली इट्स अ बर्डन ऑन द होल सिटी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। They involve the demolition of residential structures to accommodate post facilities, and definitely yes, demolition of residential structure हो रहा है, human capital is getting affected because of this, तो ये पूरा का पूरा पूरी बात सही है, yes। Third one, the finances used to fund the games could be better used for other purposes, yes, this is where the passage ends। सबसे लास्ट में जो बोला है fiscal resources, other productive, there are बोला हुआ है, तो है there are after all other productive uses that can be made of vanishing fiscal resources, ये बोला हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे वी कैन डेफिनेटली सी दैट सी इज ऑल्सो। द इन्फ्लक्स ऑफ विजिटर्स प्लेसेस अ ह्यूज स्ट्रेन ऑन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो है ना, ये डायरेक्टली नहीं बोला हुआ है, इन्फ्लक्स ऑफ विजिटर्स की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। यहाँ पे बोला है कि लाइफ इज मेड मोर हेक्टिक एंड कंजेस्टेड, राइट? बट लाइफ इज मेड मोर हेक्टिक एंड कंजेस्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट? इज इट बिकॉज ऑफ द विजिटर्स का इन्फ्लक्स, और बिकॉज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब उससे प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सिर्फ तुम्हारा जिंदगी टेंस हो रहा है, दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है? तो प्लेसेस ऑफ बर्डन ऑन दी होस्ट सिटी, ये टेम्पररी होगा, बट ये तीन जो है ना, ये परमानेंट बर्डन्स हैं, इनको एक्सप्लिसिटली पैसेज में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ विजिटर्स के बारे में पैसेज में किधर कुछ बोला नहीं है, ह्यूज स्ट्रेन थोड़ा सा बोला गया है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ रिलोकेशन एंड एवरीथिंग, right? So that's why this is possibly the first reason that has been mentioned, that has not been mentioned in the passage at all. That's why options A, B, C are much better, क्योंकि A, B, C directly mention किए हैं passage के अंदर, D को directly नहीं बोला गया है। Indirectly yes, it has been hinted at, but directly तो मतलब influx of visitor की वजह से huge strain होता है करके नहीं बोला हुआ है, ठीक है? एंड इससे बर्डन तो नहीं होगा, बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज हम लोग बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, कम्युनिकेशन चैनल्स बिल्ड करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये वाला इन्फ्लक्स ऑफ विजिटर्स हैंडल होना चाहिए,
राइट? स्ट्रेन होगा बट हैंडल होना चाहिए, बट यहाँ पे फर्स्ट थी तो डेफिनेटली बर्डन है इन द लॉन्गर टर्म एज वेल. That's why the correct answer here will be option D. All right. So that brings us to the end of the session today. I hope all of you understood whatever we discussed today. All the three passages that we discussed. In case there is anything, do let me know in the comment section. कुछ अगर समझ में नहीं आया, कुछ query है, something else is there, do let me know in the comment section below. If you like the content, do like, share, subscribe to the channel, and make sure that you are participating on a daily basis. Tomorrow's test, again to tell all of you, is on geometry, and I'll see you again tomorrow at 8 p.m. with the solutions to the test on geometry that I hope all of you solve, and then we'll be able to look at this particular session. Yeah. All right, Prathamesh, not a problem at all. I hope the session was beneficial to all of you who were present for the session. So, yeah, all of you have a great evening ahead, and yeah, bye.